بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم امت مسلمہ کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور ہم امت مسلمہ کو اس رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ان قریب ہی تیسرا عشرہ آنے والا ہے۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل اور کچھ مسائل کا ذکر کر دیا جائے اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو اس پر جمانا۔ اسی طریقے سے اصطلاح شرع میں اعتکاف بقول امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ روزہ اعتکاف کی نیت سے روزہ کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس میں غور کرنے سے تین باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف کرنا مسجد میں، لہٰذا اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ، کوئی مرد مسجد کے علاوہ اگر گھر میں اپنی اعتکاف کرنا چاہے تو پھر اعتکاف اس کا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسجد سے مراد ایسی مسجد ہے جس کے اندر پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ویران مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزہ کے ساتھ، لہذا اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف بغیر روزہ رکھے کرے تو پھر اس صورت میں رمضان المبارک کا اخیر عشرہ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اعتکاف کرے لیکن اعتکاف کی نیت نہ کرے تو پھر اس صورت میں بھی اعتکاف درست نہ ہوگا، بلکہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ کر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ ناظرین، اعتکاف کی فضیلت کے متعلق یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 40 دن تک سرحد اسلام کی محافظ کا درجہ ملتا ہے، اور جس کو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے کہ نومولود بچہ کا حال ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 مسنون اعتکاف، نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا روزہ رکھوں گا، یا اسی طریقے سے یہ کہے کہ میرے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم ہے، تو ان
तमाम सूरतों में एतकाफ वाजिब हो जाता है। लिहाजा आदमी जितने दिनों की भी नज़र मानेगा या जितने दिनों की भी एतकाफ को अपने ऊपर वाजिब करेगा, लाजिम करेगा, खाह 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 माह का हो, इस मुद्दत को पूरा करना लाजिम और ज़रूरी है। और इत्तिकाफ़ वाजिब के साथ भी रोज़ा रखना लाजिम और ज़रूरी है। लिहाजा इत्तिकाफ़ वाजिब भी बग़ैर रोज़ा के दुरुस्त और सही नहीं होता है। इसी तरीके से एतकाफ़ की दूसरी किस्म है एतकाफ़ मसनून। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा का एतकाफ़ कहलाता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा का एतकाफ़ ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी मतलब ये हुआ कि अगर पूरे मोहल्ला में से 1-2 आदमी भी रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा का एतकाफ़ कर लेगा तो तमाम मोहल्ला वालों की जानिब से ये ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी और तमाम मोहल्ला वालों की तरफ से ये एतकाफ़ दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे मोहल्ला में से कोई शख्स भी एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा का न करे तो फिर इस सूरत में तमाम के तमाम मोहल्ला वाले गुनहगार होंगे। और एतकाफ़ मसनून के लिए भी रोज़ा रखना शर्त है। बग़ैर रोज़ा के रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा का एतकाफ़ भी दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरीके से एतकाफ़ की तीसरी किस्म नफल है, यानी नफली एतकाफ़। इसके लिए इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक न कोई दिन मुतय्यन है और न कोई वक्त मुतय्यन है, बल्कि अगर आदमी 1 दिन से कम का एतकाफ़ करना चाहे तो 1 दिन से कम का कर सकता है, 1 दिन से ज़्यादा का करना चाहे तो 1 दिन से ज़्यादा का कर सकता है। अगर पूरी ज़िंदगी का भी एतकाफ़ करना चाहे तो पूरी ज़िंदगी की भी एतकाफ़ की नियत कर सकता है। और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल ही पर फतवा है। लिहाजा आदमी के लिए नफली एतकाफ़ में गुंजाइश है हसब इस्तिताअत कि जितना देर हो सके, जितना वक्त हो सके, जितना दिन हो सके आदमी एतकाफ़ की नियत कर ले। इसीलिए आदमी को चाहिए कि जब भी आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो आदमी एतकाफ़ की नियत कर ले, ताकि एक तरफ नमाज पढ़ने का भी सवाब हासिल हो और दूसरी तरफ एतकाफ़ का भी सवाब हासिल हो। इसी तरीके से एतकाफ़ के मुताल्लिक चंद मसाइल का भी जिक्र कर देना ज़रूरी मालूम होता है कि मुअतकिफ़ शख्स 3 चीज़ों की वजह से और 3 ज़रूरतों की वजह से मस्जिद से बाहर जा सकता है। सबसे पहली ज़रूरत शरई ज़रूरत की वजह से आदमी मुअतकिफ़ मस्जिद से बाहर जा सकता है। शरई ज़रूरत इसका मतलब ये हुआ कि मसलन कोई शख्स ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ कर रहा है कि उस मस्जिद में नमाज जुमा नहीं होती है। लिहाजा मुअतकिफ़ शख्स नमाज जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर दूसरी मस्जिद में जा सकता है। इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होता है। इसी तरीके से तबई ज़रूरत मसलन पेशाब, पायखाना वगैरह कि इन ज़रूरतों की वजह से भी मुअतकिफ़ मस्जिद से बाहर जा सकता है। इसी तरीके से इज़्तिरारी ज़रूरत कि मसलन मस्जिद गिरने वाली हो या मस्जिद गिर जाए तो फिर इस सूरत में भी मुअतकिफ़ मस्जिद से बाहर जा सकता है। लिहाजा इन तीनों ज़रूरतों में से किसी भी ज़रूरत की वजह से आदमी मस्जिद से बाहर जा सकता है और मस्जिद से बाहर जाने की वजह से एतकाफ़ फासिद नहीं होता है। नाज़रीन किराम, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है खुतबा के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में ये हुक्म बयान फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम हालत एतकाफ़ में, जब तुम मस्जिद में एतकाफ़ करो तो हालत एतकाफ़ में तुम अपनी बीवियों से हम बिस्तर मत हो, तुम अपनी बीवियों से जिमा मत करो। इसी तरीके से
अल्लाह तबारक व ताला ने आगे हुक्म फरमाया वतिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कि ये अल्लाह तबारक व ताला की हदें हैं, चुनांचे तुम इसके करीब भी मत जाओ। इसलिए कि हालत इत्तिकाफ में बीवी से हम बिस्तर होने की वजह से, बीवी से मुबाशरत करने की वजह से इत्तिकाफ बातिल हो जाता है, फासिद हो जाता है, इत्तिकाफ टूट जाता है। इसी तरीके से मैंने जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी है खुतबा के अंदर, इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअतकिफ के मुताल्लिक फजीलत बयान फरमा रहे हैं कि मुअतकिफ शख्स को दो मखसूस नियामत हासिल होती है हालत इत्तिकाफ के अंदर। पहली नियामत ये कि मुअतकिफ शख्स इत्तिकाफ करने की वजह से गुनाहों से महफूज हो जाता है। गुनाह से मुअतकिफ शख्स इत्तिकाफ करने की वजह से बच जाता है। इसलिए कि आदमी से बसा औकात कोताही की वजह से कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो ही जाता है, लेकिन इत्तिकाफ करने की वजह से इस तरह के गुनाह से आदमी महफूज रहता है। इसी तरीके से दूसरी नियामत ये बयान की गई मुअतकिफ के मुताल्लिक के मुअतकिफ के लिए उतना ही अजर व सवाब लिखा जाता है जितना कि करने वालों के लिए अजर व सवाब लिखा जाता है। मुअतकिफ को उतनी ही अजर व सवाब दिया जाता है जितना कि करने वाले को अजर व सवाब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स मरीज की इयादत करता है, इसी तरीके से नमाज जनाजा वगैरह में शिरकत करता है, तो इसका जो सवाब हुआ करता है तो इसका सवाब मुअतकिफ को भी मिलता है। इसलिए कि इत्तिकाफ करने की वजह से मुअतकिफ न नमाज जनाजा में शिरकत कर सकता है, न बीमार की तीमारदारी और न इयादत कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका सवाब मुअतकिफ को मिलता है। और जितना सवाब नमाज जनाजा पढ़ने वाले को मिलता है, मरीज की इयादत करने वाले शख्स को मिलता है, इतना ही सवाब मुअतकिफ शख्स को मिलता है नमाज जनाजा पढ़े बगैर और मरीज की इयादत किए बगैर। देखिए अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी रहमत है और अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।